Hello guys, our today's topic is electrolysis of aqueous NaCl. See, in the last video we studied electrolysis of a molten NaCl, जहाँ पे molten NaCl का electrolysis यानी oxidation and reduction reaction होके compound form हुए थे. Like at anode chlorine gas form हुआ था and at cathode sodium metal deposit हुआ था. Correct? Now in this video we are going to see the electrolysis of aqueous NaCl. So but obvious, the molten NaCl is replaced by aqueous NaCl solution over here. Understood? Molten NaCl था last time हमने जो पढ़ा था, यहाँ पे molten NaCl is replaced by aqueous NaCl solution. सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया इन अ वाटर, इट फॉर्म्स aqueous NaCl and here the electrolyte uses aqueous NaCl only. Understood? So देखते हैं डायग्राम से. See in the diagram, actually this diagram is of electrolysis of a fused NaCl. Same diagram है, the only thing is that instead of fused NaCl there is aqueous NaCl solution is used. Understood? Instead of fused NaCl the aqueous NaCl solution is used. So मैंने वही diagram use किया, actually the textbook में नहीं दिया है, but I just taken the same diagram. आप सिर्फ बच्चों ये replace कर देना, fused NaCl के place पे aqueous NaCl replace कर देना. ओके, फ्यूज NaCl के प्लेस पे एक्वियस NaCl रिप्लेस कर देना एंड एट द बॉटम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, ये डायग्राम का हेडिंग दे देना और या फिर डायग्राम का नेम दे देना. अंडरस्टूड? सो हियर इन द डायग्राम यू कैन सी द कंटेनर इज देयर लाइक दैट ऑफ इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl. एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या होगा? एक्वियस NaCl सोल्यूशन. अंडरस्टूड? एक्वियस NaCl सोल्यूशन. एक्वियस NaCl सॉल्यूशन का रोल क्या होगा यहाँ पे? इट प्ले एज अ इलेक्ट्रोलाइट. अंडरस्टूड? क्या करेगा वो? इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. अब उस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड है मेड ऑफ कार्बन एनोड, आई मीन कार्बन के बने हैं. वन इज एनोड, अदर वन इज कैथोड. एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड बोथ द इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड connected to the battery through the conducting wires. Understood? So here in the electrolysis of aqueous NaCl it do have the overall setup where it do contain container. In the container aqueous NaCl solution is there. Aqueous NaCl solution, in that only the two electrodes are dipped. One electrode is anode, other one is cathode. Anode is positively charged, cathode is negatively charged and both the electrodes are connected to the battery through the conducting wires. So this is overall the setup of this electrolysis of a molten NaCl that we can actually describe with the help of a diagram over here. ठीक है, अब यहाँ पे one thing we need to remember that electrolysis of aqueous NaCl solution is carried out by using aqueous NaCl solution. अंडरस्टूड? एक्वियस NaCl सोल्यूशन. अब एक्वियस NaCl सोल्यूशन है यानी देर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो. अंडरस्टूड? देखो, इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, अब मोल्टन NaCl में सिर्फ NaCl मॉलिक्यूल थे इन द लिक्विड फॉर्म. अंडरस्टूड? NaCl मॉलिक्यूल थे और NaCl मैटर इन द लिक्विड फॉर्म. बट यहाँ पे एक्वियस NaCl सोल्यूशन में इन अलॉन्ग विद द NaCl there is a presence of water molecule also. Okay, aqueous NaCl में along with the NaCl there is a presence of water molecule also. So in this case, especially in the electrolysis of aqueous NaCl, H2O molecule भी involved हो जाता है in oxidation reaction as well as in reduction reaction. अंडरस्टूड? H2O मॉलिक्यूल भी NaCl के साथ एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाता है फॉर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे वहाँ जनरली वी कैन से एक कॉम्पिटिशन लगती है इन द एनोड एज वेल एज कैथोड रिएक्शन. सो दैट विल सी ओवर हियर. ओके, स्टार्ट करता है फिर द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल. द फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड. See over here at oxidation half reaction at anode क्या हो रहा है? दो रिएक्शन हो रहा है at the anode. Understood? टू रिएक्शन as you can see over here. पहला तो है 2Cl minus ion in aqueous form, क्योंकि देखो NaCl solution है तो डेफिनेटली डायरेक्टली Na plus ions and Cl minus ions फॉर्म हुआ होगा. Understood? Na plus ions and Cl minus ions. You can see over here in the diagram also. डायग्राम में aqueous NaCl है, इमेजिन कर लो तो Na plus ions and Cl minus ions है. अब Na plus ions कहाँ पे माइग्रेट होंगे? Na plus ions attracted towards the negatively charged cathode and Cl minus ions attracted towards the positively charged anode. अंडरस्टूड?
ये तो सेम है लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अंडरस्टूड? NaCl में Na प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस है, करेक्ट। सो Na प्लस आइंस अट्रैक्ट हुए नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ एंड Cl माइनस आइंस अट्रैक्ट हुए पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे जो द रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। फर्स्ट रिएक्शन इज 2Cl minus ion lose 2 electron and form Cl2, that is chlorine gas. Understood? The 2Cl minus ions gives chlorine by releasing 2 electron over there. और उसके लिए वो जो प्रोसेस होती है उसके लिए पोटेंशियल भी दिया है वहाँ पे। EMF ऑफ दैट सेल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू -1.36 वोल्ट। अंडरस्टूड? सो पोटेंशियल दिया है वहाँ पे दैट इज -1.36 वोल्ट। अंडरस्टूड? सेकेंड रिएक्शन जो होती है वो है वाटर मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट। अंडरस्टूड? पहला रिएक्शन तो डेफिनेटली क्लोरीन है जहाँ पे एनोड पर क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टूड? Cl माइनस आइंस कन्वर्ट्स इनटू द क्लोरीन गैस। The second reaction is 2H2O in a liquid form gives oxygen plus 4H plus ions plus 2 electron. Understood? तो यानी ऑक्सीजन वाटर का भी यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। ओके, वाटर इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसोसिएट एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीजन गैस प्लस 4H plus ions by losing 2 electron. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का EMF वैल्यू कितना है, ई सेल वैल्यू कितना है, -0.4 वोल्ट। अंडरस्टूड? -0.4 वोल्ट। अब अगर आप दोनों रिएक्शन की EMF वैल्यू कंपेयर करो बच्चों, EMF ये आपके लिए नया होगा एक्चुअली, ये एक सेल पोटेंशियल है। ओके, EMF वैल्यू या फिर आप बोल सकते हैं इसको सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode, the two electrode, that is called cell potential actually. Understood? The potential difference between anode and cathode, in fact that is said to be the cell potential. तो ये एक सिंपली रिएक्शन के समझ लो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे और उसका सेल पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट पहले रिएक्शन के लिए एंड सेकेंड रिएक्शन के लिए जहाँ पे H2O कन्वर्ट हो रहा है इनटू द ऑक्सीजन गैस एंड H प्लस आइंस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, उसका सेल पोटेंशियल है -0.4 वोल्ट। अंडरस्टूड गाइस? ये सेल पोटेंशियल ये पर्टिकुलर टॉपिक होने के बाद इनफैक्ट डिटेल में हमें मिलेगा। सो जस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ अ सेल पोटेंशियल ऑफ बोथ द रिएक्शन एट एनोड ओनली। अंडरस्टूड? अब दोनों में से किसकी हायर वैल्यू है, -1.36 वोल्ट या फिर -0.4 वोल्ट? दोनों का साइन माइनस है, सो बट ऑब्वियस -0.4 वोल्ट इज हायर देन -1.36 वोल्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये कंसिडर किया जाएगा कि एक्चुअल में 2H2O मॉलिक्यूल forms oxygen and 4H plus ions by losing 2 electron is the proper oxidation reaction over here. Understood? देख लो यहाँ पे the standard electrode potential for the oxidation of water is greater than that of for the Cl minus ions. You can see over here the standard electrode potential. Standard electrode potential यानी E naught oxidation दिया है for both the reaction. एक है -1.36 वोल्ट और दूसरा है -0.4 वोल्ट। अंडरस्टूड? तो वाटर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, -0.4 वोल्ट एंड क्लोरीन के लिए Cl माइनस आइंस टू फॉर्म्स क्लोरीन गैस के लिए -1.36 वोल्ट। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीजन और यू कैन से फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Cl माइनस आइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होता है वो पर्टिकुलर रिएक्शन बताता है, यानी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन बताएगा। अंडरस्टूड? सो एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर compared to the Cl minus ions, so here water has greater tendency to undergo oxidation. Understood? Water की tendency ज़्यादा है to lose the electron. Okay? Therefore, anode half reaction would be oxidation of water actually. हम लोग आउट ऑफ दिस टू एक्चुअल में रिएक्शन कौन सी होगी या फिर करेक्ट रिएक्शन कौन सी होगी? सो एनोड हाफ रिएक्शन वुड बी डेफिनेटली द ऑक्सीडेशन ऑफ अ वाटर। बट हाउएवर एक्सपेरिमेंट शोज दैट द गैस प्रोड्यूस एट एनोड इज क्लोरीन गैस, नॉट द ऑक्सीजन गैस। अगर आप एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करो देन द गैस प्रोड्यूस एट द एनोड इज क्लोरीन गैस इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब ये है कि एनोड रिएक्शन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस आयंस टू क्लोरीन गैस। अंडरस्टूड? एनोड रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, Cl माइनस आयंस कन्वर्ट्स इनटू द क्लोरीन गैस। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। फर्स्ट 2Cl माइनस आयंस गिव्स क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट। दूसरा रिएक्शन है 2H2
गिव्स ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.4 वोल्ट। इट इज़ कंसिडर दैट जिसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिएक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इन आउट ऑफ दिस टू रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, -0.4 वोल्ट है इसीलिए। ओके, तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर दैट H2O अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी H2O इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जब होता है देन इट इज सेड, देन इट इज confirm that only chlorine gas is formed at the anode. Understood? Instead of this one oxygen gas, chlorine gas is formed at the anode. अब chlorine gas form हो रहा है एनोड पे, मतलब एक्चुअल में क्या है कि Cl माइनस आइंस कन्वर्ट्स इनटू द क्लोरीन। अंडरस्टूड? Cl माइनस आइंस कन्वर्ट्स इनटू द क्लोरीन गैस। सो एनोड पे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टूड? एनोड पे क्या हो रहा है? क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। सी यहाँ पे भी दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फर्स्ट रिएक्शन इज Na प्लस आइंस एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स इनटू Na in a solid form. Understood? Na plus ions accept electron and there is a formation of a metallic Na. उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वहाँ पे -2.71 वोल्ट। अंडरस्टूड? दूसरा रिएक्शन ये है कि 2H2O एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। दूसरा यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है वाटर का। वाटर वहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज़ हो रहा था, वाटर यहाँ पे रिडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा है। दैट इज 2H2O एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म्स H2 प्लस 2H2O। अंडरस्टूड? टू फॉर्म H2 प्लस OH माइनस आइंस हाइड्रोक्सिल आयन। अंडरस्टूड? अब इसका EMF वैल्यू कितना है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू E0 इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट। पहला वाला है -2.71 वोल्ट, सेकेंड वन -0.83 वोल्ट। किसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, सेकेंड रिएक्शन का या फिर फर्स्ट रिएक्शन का? ओके, हियर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of for the reduction of water is higher than that of Na plus ions, and this implies that water has much greater tendency to get reduced than the Na plus ions. Hence we can say over here the reaction second, that is H2O to forms H2 and 2OH minus ions reduce at the cathode. Understood? So this is our reduction reaction takes place at the cathode. दोनों में से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा? सेकेंड रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा यहाँ पे भी। सो यहाँ पे एक्चुअल में वाटर रिड्यूस हो रहा है इंस्टेड ऑफ Na प्लस आइंस विद द ग्रेटर टेंडेंसी एक्चुअली। अंडरस्टूड? सो आवर कैथोड रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ अ वाटर बाय एक्सेप्टिंग द 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म्स H2 एंड 2OH माइनस आइंस। अंडरस्टूड? अब ये तो कंफर्म हो गया कि एनोड पे फॉर्म हो रहा है क्लोरीन गैस, यहाँ पे कैथोड पे फॉर्म हो रहा है H2 गैस। लेट्स सी एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रही है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। इन दिस केस द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज 2Cl माइनस आइंस, जो कि हमारी पहली रिएक्शन थी, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन 2Cl माइनस आइंस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा फर्स्ट रिएक्शन 2Cl माइनस आइंस इन एक्वियस फॉर्म गिव्स क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन एट एनोड। एंड रिडक्शन किसका हो रहा है? वाटर का, जो अभी हमने देखा ये वाला। ये पहले दो रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन है वो ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस। सो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस आइंस। दिस इज रिडक्शन एट एनोड। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर? ओवरऑल सेल रिएक्शन इज डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लो in the first reaction as well as in the second reaction. फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को कैंसिल कर दो। तो फिर जो भी रिएक्टेंट साइड में स्पेसीज होंगे, रेडिकल होंगे या फिर कंपाउंड होंगे, एंड प्रोडक्ट साइड में रेडिकल होंगे या फिर कंपाउंड होंगे, उनको हमें नोट करना है। अंडरस्टूड? दिस विल गिव्स अवर ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, a combination of oxidation and reduction reaction. In short, it is a redox reaction actually. It is one of the proper redox reaction. ठीक है, तो क्या होगा ये redox reaction या फिर overall cell reaction? 2Cl minus ions in aqueous form plus 2H2O, ये दो कंपोनेंट है हमारे रिएक्टेंट साइड में। It gives Cl2 gas
plus H2 gas plus 2 OH minus ions. Understood? I repeat, 2 Cl minus ion in aqueous form plus 2 H2 in a liquid form gives Cl2 gas plus H2 gas plus 2 OH minus ions. This is our overall cell reaction. इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो Na प्लस आयन है यहाँ पे Na प्लस आयंस का रिडक्शन हो ही नहीं रहा इन दिस रिएक्शन. अंडरस्टूड? Na प्लस आयंस का रिडक्शन हो ही नहीं रहा, मतलब Na प्लस आयंस एज इट इज है. एट द सेम टाइम आप देख लो तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में OH माइनस आयंस फॉर्म हो रहा है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Na प्लस आयंस ऑलरेडी है वहाँ पे इन अ कंटेनर एंड फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयंस ओवर हियर इन द रिडक्शन रिएक्शन. तो फिर Na प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस का कॉम्बिनेशन होके एक्चुअली चांसेस है कि वहाँ पे NaOH फॉर्म हो जाए. अंडरस्टूड? सो NaCl जो हमारा एक्वियस NaCl सोल्यूशन था, अंडरस्टूड, एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, that aqueous NaCl may convert into aqueous NaOH solution. Understood? Aqueous NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाएगा. अंडरस्टूड? देखते हैं फिर रिजल्ट क्या है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl का. पहला तो यह है कि H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड. कैथोड के पास H2 गैस लिबरेट हो रहा है. ये हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन में. एट कैथोड H2 गैस इज लिबरेटेड. सेकेंड, क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड. एनोड के पास क्लोरीन गैस रिलीज हुआ. अंडरस्टूड? ओके, क्लोरीन के पास एनोड के पास कौन सा गैस? क्लोरीन गैस रिलीज हुआ. एंड एज आई सेड अर्लियर कि Na प्लस आयंस रिमेन्स अनरिएक्टेड ओवर देयर. अंडरस्टूड? Na प्लस आयंस तो एज इट इज है. अब वो Na प्लस आयंस कंबाइन विद द OH माइनस आयंस ओवर देयर. हाँ, OH माइनस आयंस जो फॉर्म हो रहा है एट द कैथोड उसके साथ कंबाइन हो रहा है. And there is a formation of a NaCl solution. Understood? Conversion of NaCl solution into the NaOH solution. समझ रहे? तो तीन एक्चुअली कंपोनेंट वहाँ पे फॉर्म हुए. वन इज एट कैथोड H2 gas is formed, at anode chlorine gas is formed, and NaCl solution will convert into, or it is convert into NaOH solution. Understood? NaCl solution convert हो गया into the NaOH solution. समझ गए गाइस? तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस एंड दिस वन इज एक्वियस NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस. जहाँ पे एक्वियस NaCl सोल्यूशन है, सो एक्वियस यानी एक्वा यानी वाटर, सो वाटर की इन्वॉल्वमेंट है. सो दोनों रिएक्शन में एक्चुअली एनोड एज वेल एज कैथोड रिएक्शन में वाटर की इन्वॉल्वमेंट हुई. जहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हमने कंसिडर किया कि कौन सा रिएक्शन have a greater tendency to act as anode reaction or a cathode reaction, and based on that only we conclude the final result. At anode chlorine gas is formed, at cathode hydrogen gas is formed, and whatever Na plus ions remains unreacted combines with the OH minus ions which form at the cathode only, and there is a conversion of NaCl solution into the NaOH solution, especially in electrolysis of a aqueous NaCl solution. समझ गए गाइस? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl का, NaCl सॉल्यूशन का. गाइस आपको मोल्टन NaCl या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. 2 मार्क के लिए होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे आपको पूरी एनोड कैथोड रिएक्शन कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो इतना प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना. थैंक यू.